Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing well. So in today's video, we are going to discuss about class 9 Science NCERT chapter number 8, that is motion. For your kind information, I would like to tell you that we have uploaded many parts of the same chapter. I think we have uploaded 11 or 10 or 11 parts of the same chapter on YouTube. So please watch all those parts before watching this part. This is going to be your part number 12. Because if you are not understanding the basic concept of the chapter, then this concept of this video will not be very clear to you. So please watch all those video. After watching all those video, you can watch this one. Only then you will get each and everything that we are discussing in this today's video. So without any further delay, let's get started with the today's video. And the concept is important question based on equations of motion. As you know, in our previous video we have discussed the derivation of equations of motion. So there were three equations of motion, that is v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square equals to 2s. These were the three equations which we have derived in our previous video. If you have not watched that one, please go to our channel. It will be available in the playlist. Watch there, and if you like the video, then please hit the like button. And if you want to give us any suggestions, then please post your suggestion in the comment section below, because we are getting motivation from your comments. And in this today's video, we are going to use these equations, that how we can use these kinematic equations or the equations for solving the question. So we will take some examples, like I think 4 or 5 questions we will be taking. And after using these equations, we are going to solve the question in this video. So let's start with the first question, because I think this is going to be a long video. So please watch this video till the end carefully. Okay, only then you will get all the things very clearly. So the first question is, a bird starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. ओके अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत प्यार से रीड करना है, बहुत आराम से रीड करना है. मोस्टली द स्टूडेंट आर कमिटिंग द मिस्टेक, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रीडिंग द क्वेश्चन इन हैश, बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं. देन इफ यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, देन यू वोंट बी एबल टू फाइंड द आंसर्स by yourself in the, because 50-60% answers are hidden in the question itself. अगर आप देखेंगे तो आंसर्स, अगर क्वेश्चन आप एक बार समझ गए तो फिर आंसर्स निकालने में कुछ बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, बहुत जल्दी आंसर्स निकल के आ जाते हैं. बट यू मस्ट गेट द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, व्हाट ही इज आस्किंग टू कैलकुलेट. You must understand what the quantities are given in the question and what formula will be applicable. So must read the question carefully. अभी इसको रीड करेंगे अच्छे से. अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. Starting from rest means, I have told you, whenever anything is starting from rest, in that case the initial velocity of the object will be 0. If anything is starting from rest, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी को मेंशन किया है 0. आप क्या करेंगे, जो जो क्वांटिटीज आपको गिवन है, यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ इट. आपको उनके नोट्स बनाने हैं, उनको नोट डाउन कर लेना है. ठीक है. So the first quantity that we have noted on the board is initial velocity. यहाँ से आपको initial velocity का आइडिया लग गया कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, that means initial velocity 0 हो गया. मैं नोट डाउन भी कर लिया इसको. नेक्स्ट, with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. Now they have also given the value of the acceleration. What is the value of the acceleration they have given, and how we can find out the value without, if they are not talking that it is an acceleration, it is some kind of thing, it is a velocity, then simply by identifying the units you can get the value of those quantity. आपको अगर नहीं बता रखा है उन्होंने acceleration है, तो आप simply जो इसकी यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करोगे, और यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि वो acceleration है या velocity है या distance है या फिर क्या चीज़ है वो. ठीक है. तो अभी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, नोट डाउन किया हमने 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ मूविंग फॉर 2 minutes. 2 minutes, I have told you minutes is what? Minute is the unit of time. So that's why make a note of it. Time equals to what? 2 minutes. And if you are going to solve any of the question, then you need to convert the given quantity in the SI unit. आपको SI systems में convert करना पड़ता है. अभी हमने time को 2 minutes लिखा हुआ है यहाँ पे, and SI unit of time is what? Second.
So how can we convert the time into second? Just by multiplying 60, because in 1 minute there are 60 seconds, and if you are multiplying 2 by 60, then you will get 120 seconds. Is it clear? All the things we have noted on the board. Now just try to analyze which formula is applicable according to the question, what they are asking. And okay, so now what they are asking you to calculate two values. First they are asking the speed acquired, and after they are asking in the second part they are asking the distance traveled. आपको दो चीज़ें पूछी हैं उसने. एक तो आपसे पूछा है कि 2 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी. रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन भी है उसमें, तो स्पीड 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी वो आपको बताना है. और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि हमारा जो डिस्टेंस है 2 सेकेंड्स में वो कितना ट्रेवल करेगा. ओके, सो लेट्स डील विद द क्वेश्चन. नाउ फाइनल स्पीड, और यू कैन से स्पीड acquired by the object after 2 seconds. Speed acquired by the object after 2 seconds. Speed acquired by the object after 2 seconds. Sorry, 2 minutes, not 2 seconds. 2 minutes, or you can say in 120 seconds. Either you can write like this, 2 minutes or 120 seconds. Both are same thing. मैंने आपको बोला स्पीड या वेलोसिटी, जब न्यूमेरिकल्स को आप डील करोगे तो दोनों चीज़ें सेम रहती हैं. इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल्स द स्पीड एंड वेलोसिटीज बोथ आर हैविंग सेम वैल्यू, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड अमंग दीज टू टर्म्स. आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. ठीक है, स्पीड बोल रहा हूँ तब भी वेलोसिटी है, एक ही बात है. ठीक है, तो अभी स्पीड पूछ रहे हैं किसी टाइम के बाद में. इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है. दैट मीन्स दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो चेक इट आउट विच फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम दिस 3 गिवन इक्वेशन. वी दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट वी इज व्हाट, फाइनल स्पीड, और यू कैन से फाइनल वेलोसिटी, और यू कैन से द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी. जो टी टाइम के बाद वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं. ये आपको पूछ रहे हैं, यू आपको गिवन है, ए भी गिवन है, टी भी गिवन है. ये वाली एप्लीकेबल हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, राइट. सो सिंस v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ओके, नाउ दिस इज योर इक्वेशन दैट वी आर अप्लाइंग इन दिस क्वेश्चन. जस्ट वेट. So simply what you will get, v equals to u is what, 0, a is what, 0.1, and t is what, 120 second. So if we are calculating, okay, this is 0, 0 cancel out, then you will get the value v equals to 12 meter per second. This is the SI unit of velocity, and this is the value of velocity after, or the speed after 120 seconds. Is it clear? u is already 0, so 0 doesn't have any meaning in it. 0 is insignificant. यहाँ पे insignificant है, इसका कोई मतलब नहीं है. ये 0 पॉइंट हमने डेसिमल रिप्लेस किया तो नीचे 1 0 आएगा. जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतने जीरोस आते हैं. अभी यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए 1 0 आया है. इसको रिप्लेस किया, 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 1 12, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, राइट. सो द स्पीड आफ्टर 120 सेकेंड विल बी 12 मीटर पर सेकेंड. आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू. Okay, so the first part is very clear. Please pause the video to make a note of it so that we can proceed for the second part. Okay, I think you have taken the screenshot. So now move to the second. Okay, second one. In second, what they are asking, second they are asking you to calculate distance traveled, and you must look at this. Here we are having the distance, here we are also having the distance. Distance is coming in two formulas. Distance is coming in two formulas. So which formula will be applicable? Now check it out. T is given to you, u is given to you, a is given to you, everything is given in the second equation also. So you can easily apply the second one. Either you can apply the third one, because you are also having the value of v, u and 2a, everything we are having. सो दोनों इक्वेशंस आप लगा सकते हैं, कोई सी भी आप लगा दीजिए. एस वाली फर्स्ट वाली लगा देंगे, सेकंड वाली लगा देंगे,
ये थर्ड वाली अप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वेशंस के थ्रू आपका आंसर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, राइट। हम यूज़ करते हैं सेकेंड वाला। सिंस बी पार्ट हम कर रहे हैं, अभी बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सिंस एस इक्वल्स टू कितना होता है, सेकेंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू कितनी है, 0 है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं s इक्वल्स टू, जस्ट वेट, s इक्वल्स टू कितना हो गया 0 इंटू टी, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 a आपका कितना है, सिंपल इंटू 0.1 है, और t स्क्वायर है तो 120 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। 120 का स्क्वायर कर दिया। हम नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी, 0 ही बचेगा, तो उसको आप लिखिए, मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 लिख देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 1/2 ये जगह 0.1, 120 इंटू 120। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, किसी भी नंबर को आप सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ओके। व्हाट डज द स्क्वायर मीन, लाइक द स्क्वायर ऑफ a मीन्स a इंटू a, स्क्वायर ऑफ 20 मीन्स 20 इंटू 20, स्क्वायर ऑफ 10 मीन्स 10 इंटू 10। So this is we have just applied the formula, second equation we have taken, okay, s equals to ut plus half a t square, and s, u is what, 0 here, and t is what, t is 0 into t, something becomes 0. If you are multiplying anything with the 0, then whole term becomes 0. That's why you have not put the value of t over here. अभी इसलिए मैंने पुट नहीं किया है वैल्यू, ठीक है जी। तो अभी ये है 1/2, 0.1 है। चलिए अभी कैलकुलेट करते हैं। 0 इंटू 2 0 कर दिया, 1/2 0.1, 120 का स्क्वायर था तो इसलिए 2 टाइम्स इसको लिख लिया है, ठीक है। अभी यहाँ से पॉइंट रिप्लेस करेंगे, नीचे कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 6 जा, जस्ट वेट, थोड़ा सा डाउट ना हो आपको, एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए आपको डाउट ना हो, इसलिए मैं सारा चीज़ें बहुत ट्राई करता हूँ, बहुत क्लियरली लिखूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 से कैंसिल आउट किया है 6 टाइम, 2 6 जा 12। अभी 6 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा 6 इंटू 120, 120 बचा है इंटू 6 बचा है, तो आपका जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो आएगा 720 मीटर। ये आपका डिस्टेंस का वैल्यू हो गया, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको स्पीड कैलकुलेट किया था, वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड वाले में हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया, ये सारा डेटा आपको गिवन है, v हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते थे, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो अभी हमने सेकंड वाला यूज़ किया है, आंसर सेम आएगा, आप सेकंड वाला यूज़ कीजिए या आप थर्ड वाला यूज़ कीजिए, दोनों इक्वेशंस को यूज़ करने के बाद आंसर सिमिलर आएगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने यूज़ किया है, u 0 है तो 0 इंटू टी कर दिया यहाँ पे, एंड 1/2 a की वैल्यू पुट कर दिया 0.1, t स्क्वायर है इसलिए 120 का स्क्वायर किया। नेक्स्ट लाइन में 0 1/2 0.1 करा है यहाँ पे, और 120 इंटू 120 किया, 0.1 से पॉइंट रिप्लेस किया, नीचे 1 0 आएगा, 0 से 0 कट किया, 2 से 6 कट 12 कट किया 6 टाइम, और कितना बचा ये 120 इंटू 6 बचा, 12 6 जा 72, 0 इंटू 0, ओके। दिस इज योर आंसर 720। प्लीज पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट, either you can take the screenshot, whatever the method is suitable to you, you can use that one, okay। जो भी आपको easy लगता है वो आप कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना अच्छा लगता है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट डाउन करना अच्छा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। कुछ डाउट है तो फिर से देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है कि यार यहाँ कैसे करेंगे, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये, अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, बहुत क्लियर हो जाए ये, आपको डाउट ना हो। थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं ना इसको एक बारी, फिर से देख लेते हैं। ये आपका 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस 1/2 0.1 इंटू 120 इंटू 120, है ना। क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे 0 आया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, 2 6 जा 12। अब क्लियर है, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, 120 बचा और 6 बचा, ओके। सो क्लियर होना चाहिए सारा कुछ, डाउट नहीं होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है
ठीक है। कोई भी आपको वीडियो की हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। जितने सारे ग्रुप्स हैं आपके पास व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा उतना ज़्यादा हमारा जो एफर्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एफर्ट हम कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम यू। आपकी हेल्प के लिए कर रहे हैं कि कोविड इतना ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं सारे लोग, जिससे कि आपकी लर्निंग इफेक्ट ना हो, इसलिए। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए। ओके, okay, I think you have taken the screenshot of the previous question. Now we need to discuss the question number 2, that is this one. A racing car has an uniform acceleration of 4 meter per second square, and what distance will it cover in 10 second from start? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। उसने बोला एक रेसिंग कार है जिसका एक्सेलरेशन कितना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन गिवन है, मैंने आपको बताया नहीं भी गिवन होगा तो आप यूनिट से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी क्वांटिटी है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ये नोट डाउन करते हैं कौन कौन सी चीज़ें गिवन है आपको। ओके, सो फर्स्ट सॉल्यूशन नोट डाउन, सॉल्यूशन सॉल्व करने का, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है जो गिवन है उनको नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट आपको गिवन है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, नोट डाउन कीजिए। एक्सेलरेशन को ए से मेंशन करते हैं। एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू गिवन है आपको कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। टाइम आपको गिवन है, नोट डाउन कीजिए। टाइम इक्वल्स टू टाइम t equals to 10 second, time t equals to 10 second. Now what they are asking, what distance will it cover in 10 second from start. Listen one thing, whenever we are observing the motion of any object from start, in that case initial velocity will be 0. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट से काउंट हो रहा है, उसकी आप स्टार्ट से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, 0। ये रेसिंग कार की जो मोशन है वो कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, स्टार्ट से। दैट मीन्स हमारा जो हमें जो कैलकुलेट करना है वो स्टार्ट से कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे u क्या होगा, 0 होगा। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होगा, क्योंकि हमारी जो कार है उसकी वेलोसिटी या डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम स्टार्ट। तो जहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हमारा u क्या होगा, आपका 0 होगा। कितना होगा, 0। क्लियर। कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं u क्या होगा, आपका 0 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, मतलब अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट से काउंट कर रहे हैं हम तो उसका मतलब स्टार्टिंग में रेस्ट में होगा, उसके बाद मूवमेंट कुछ स्टार्ट हुआ होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट से काउंट कर रहे हैं तो यू आपका 0 होगा, ध्यान रखिएगा। आपसे डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको बताना है कौन सा लगाएंगे इसमें। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस को किससे मेंशन करते हैं, s से, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नाउ प्लीज चेक इट आउट विच इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल by using this data. A is given to you, T is given to you, U is given to you, S is needed to be calculated. Okay, S is needed to calculate. Here we are having V equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT square, V square minus U square equals to 2AS. कौन सी वैलिड होगी, सेकेंड वाला। कौन सा वैलिड होगा, सेकेंड वाला। चलिए अप्लाई करते हैं। ये है आपका बाई सेकेंड इक्वेशन, बाई S equals to UT plus half AT स्क्वायर। चलिए अप्लाई करते हैं। u की वैल्यू सेम वही, u इक्वल्स टू क्या है, 0 है, इंटू टी प्लस 1/2। a की वैल्यू इस बार चेंज है, कितना है, 4 है, और टाइम कितना है, 10 स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट वाली में पुट करेंगे वैल्यू हम, ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 0 इंटू 1/2, 4 हो गया यहाँ पे, 10 इंटू 10 कर दिया। ठीक है, अभी हमने क्या करा है, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। यहाँ पे 0 हो गया, 1/2, 4, 10 का स्क्वायर था तो 10 इंटू 10 कर दिया। कैंसिल आउट कर दीजिए इसे। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। नाउ क्या बचेगा आपका, चेक करिए।
ये बचेगा s इक्वल्स टू 0 तो 0 रहेगा, उसको कुछ करने की नीड नहीं है। 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या होता है 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर्स। तो आपका जो डिस्टेंस आया है 10 सेकंड के बाद वो कितना आया है 200 मीटर्स। क्लियर है इतना? चलिए, ये आपका डिस्टेंस था 200 मीटर्स। यस, क्लियर। बस इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला था कि कभी भी मोशन अगर आप स्टार्ट से देखोगे, स्टार्टिंग से मोशन को देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट, आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ओके, okay, now I think you have taken the screenshot of the question number 2. Now we need to discuss the another question that is very important, so please just focus on the question, and I have told you please read the question again and again. You will get 50-60% solution from the question only. आपको एक बार अच्छे से रीड करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इतना टफ नहीं है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर बहुत टफ हो जाता है। जैसे आपने देखा बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत टफ होता है फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स होती है, थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। बट आपको बहुत ईजी में पढ़ा रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें ईजी तरीके से क्लियर करा रहा हूँ, तो आराम से पढ़िए और एंजॉय कीजिए सेशंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ, फर्स्ट थिंग आपको यहीं से मिल गया होगा, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है उस केस में क्या 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। नोट डाउन कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम होती है। इनिशियल वेलोसिटी, ट्राई यही करता हूँ वीडियो लॉन्ग ना हो, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फिर थोड़ी सी लेंदी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। बहुत सारे चैनल पे शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना है आपको और अपने व्यूज़ को नहीं बढ़ाना है, और यू 0 है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। ओके, नेक्स्ट इज एंड एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी गिवन है आपको, कितना गिवन है एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स वेरी क्लियर। नाउ एंड इट इज मूविंग फॉर 8 seconds. टाइम इज ऑल्सो गिवन टू यू, टाइम इज गिवन T इक्वल्स टू वॉट, T इक्वल्स टू जस्ट 8 seconds। कितना टाइम गिवन है 8 seconds। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। वो आपसे पूछ रहा है कि बोट कितना दूर जाएगी, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बोट इस टाइम में, 8 seconds में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बोट। बहुत सिंपल है, डिस्टेंस पूछा है इसमें भी, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। डिस्टेंस आपसे पूछा है, नोट डाउन करिए इसको, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस S इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ अगेन द सेम थिंग, दे हैव गिवन द सर्टेन डेटा टू यू। बहुत सारे डेटा आपको गिवन है, कितना U0 गिवन है, कुछ बड़ा लग रहा है, O टाइप का लग रहा है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, है ना, ऐसा कर देते हैं। ओके, सो U इज गिवन टू यू, एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू, टाइम इज गिवन टू यू, डिस्टेंस इज गिवन टू यू। जस्ट चेक इट आउट विच इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू यू, बिकॉज आई हैव रिटन ऑल द इक्वेशंस ऑन द बोर्ड। फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल एंड इट इज जस्ट forget about it because in this we need to calculate the velocity, just it will not be applicable. Second, these two can be applicable, so if we want to apply this one then we need v नहीं पता है आपको, v calculate करना पड़ेगा, then that will be a lengthy process. Not go for a shortened method, s equals to ut plus half at square, that's sufficient. This is the perfect equation for this problem. just apply कीजिए, आंसर्स आते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन को निकालते हैं। s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ut plus half, and these all are the questions that are taken from the NCERT only, so don't get confused that whether we are using side book से भी लिए हैं एक दो क्वेश्चंस को। u हो गया, t 0 है, सॉरी u 0 है, t एज इट इज रहेगा 1/2। एक्सेलरेशन आपका 3 है इस टाइम, और टाइम आपका 8 सेकंड है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बारे में, s इक्वल्स टू 0 इंटू टी 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1/2, 3 हो गया ये, और ये स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8। चलिए अभी देखते हैं कितना होगा, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या ही आएगा इसका आंसर इसका यहीं पे आ जाएगा। s इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू वॉट 4,
तो हो गया आपका कितना, s इक्वल्स टू 3 4 जा 12, 8 जा 96 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी, कुछ करना नहीं है, बस 96 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। इज इट वेरी सिंपल, इजंट इट सो सिंपल। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, मज़ा आने वाला है आपको। क्वेश्चंस कीजिए बुक से, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। सेलेना अवेलेबल है मार्केट में, SC वर्मा अवेलेबल है, NCERT अवेलेबल है, बट स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ कीजिए, लोकल बुक्स यूज़ नहीं करना है। जो चीप क्वालिटी की बुक्स होती है उनमें कंटेंट बहुत रॉन्ग मिस्टेक्स होती है, तो SC वर्मा आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप NCERT यूज़ करते हैं, और या फिर NCERT एग्जाम्पलर एक बुक आता है, उसको भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी गुड ऑफ दैट बुक, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाया हमने, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल जी। यहाँ से u की वैल्यू 0 है, इंटू टी पुट किया, 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 3 है, 3 पुट किया, टाइम की वैल्यू 8 सेकंड है, 8 पुट किया, स्क्वायर है, स्क्वायर पुट कर दिया, s इक्वल्स टू u 0 रहेगा, 0 इंटू टी 0 हो गया, 1/2, 3 पुट किया, 8 स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 8 इंटू 8 किया है, 2 से कैंसिल आउट किया 4 को, तो अभी नेक्स्ट लाइन में कितना मेंशन किया, जो रिमेनिंग थिंग्स है, 0 से कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू 8 इंटू 4, 3 4 जा 12, 8 जा 96, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, नाउ द आंसर इज 96 मीटर। इज इट क्लियर? If you have any doubts, then please post your doubt in the comment section. And if you want any video on demand, कोई वीडियो आपको चाहिए, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे मेंशन करिए, मैं सेपरेट वीडियोस को बना के दूंगा आपको YouTube पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ I think you have done the question number 3. Now we need to move to the next question, that is question number 4. Find the initial velocity of a car which is stopped in 10 seconds by applying brakes and the retardation due to brakes is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। अभी देखते हैं और क्वेश्चंस, टाइम अगर मिलेगा तो कर लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग होगी वीडियो तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स। आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का सबसे पहला फंडा है, जो गिवन है उनको नोट डाउन कीजिए। आपको इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है u इज कैलकुलेट, नीडेड टू बी कैलकुलेट, एंड विच इज स्टॉप्ड। लिसन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते स्टॉप हो रहा है, पहले से ही चल रहा था और किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा और ब्रेक अप्लाई किया है, ब्रेक अप्लाई होने के बाद वो रुक गया है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते स्टॉप होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इसने बोला विच इज स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इस केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। लेट्स सपोज ये v आपका 0 होगा, u पूछा है, सॉरी u 0 नहीं होगा, u तो पूछा है आपसे, v 0 होगा। ओके, नाउ व्हाट दे आर गिविंग यू, टाइम दे हैव गिवन, टाइम आपको गिवन है, कितना टाइम गिवन है, टाइम नोट डाउन कर लीजिए। टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड, टाइम इज गिवन टू यू एज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम गिवन है। एंड retardation due to brakes, I have told you whenever I was teaching you acceleration, acceleration is just whenever the object is increasing its speed, then the rate is called, rate of increase of velocity is called as acceleration, and whenever the object is decreasing its speed, then rate of decrease of velocity is called as retardation. एक्सेलरेशन का रिवर्स होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर स्पीड स्लो डाउन हो रही है क्योंकि इसमें ब्रेक अप्लाई करे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो स्लो डाउन होगी और एक टाइम पे आके वो रुक जाएगा। तो अगर स्पीड स्लो डाउन होगी तो उसमें रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रिटार्डेशन वाला। ओके, ये रिटार्डेशन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन है आपका जस्ट एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिखते हैं और रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव होगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है। क्लियर? चलिए अभी देख लेते हैं, हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, u/v/t/a, कौन सा रिलेशन अप्लीकेबल होगा, ये वाला, फर्स्ट वाला, और कोई अप्लीकेबल नहीं हो सकता।
एस आपको इसमें चाहिए, एस नहीं है हमारे पास, और आपको यूटी वगैरह डिस्प्लेसमेंट की कोई नीड नहीं है, डिस्टेंस की कोई नीड नहीं है, तो ये दोनों नहीं यूज़ करने वाले हम, ये भी नहीं यूज़ करेंगे, ये भी, ये वाला यूज़ करेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख देते हैं यहाँ पे, बाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको यूज़ करेंगे हम, देखते हैं क्या ये होगा। v 0 है आपका, v की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, u आपका कितना है कैलकुलेट करना है आपको, प्लस a कितना है -2.5, और t कितना है जो भी होगा आपका 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं क्या ही होगा। 0 इक्वल्स टू हो गया u प्लस माइनस -2.5 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे करके 2.5 अपॉन कर देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2.5 प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, कोई नीड नहीं है इसको परेशान करने की। देखते हैं, ये हो गया 0 हो गया, b की वैल्यू, u आपको कैलकुलेट करना है प्लस माइनस माइनस 2.5 से हमने डेसिमल को रिप्लेस किया है, 0 आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, ये बचेगा 0 इक्वल्स टू u माइनस 25, तो u को इधर भेज, इसको 25 को इधर भेज देंगे, u की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है, दैट्स वन। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। रिटार्डेशन मीन्स जब भी आपका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ये वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे हम उसकी, इन दैट केस रिटार्डेशन यूज करेंगे। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन यूज करेंगे, राइट। इन ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव यूज्ड द वर्ड एक्सेलरेशन, नॉट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यूज नहीं किया हमने, एक्सेलरेशन यूज किया है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। देखते हैं अभी, यहाँ पे है सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना था, फाइनल वेलोसिटी 0 लिया है। क्यों लिया है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलते चलते रुक रहा है, पहले से ही वो चल रहा था, ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद वो रुक जाएगा। जब चलते चलते रुकेगा तो v 0 होगा, और अगर रुका हुआ है पहले से ही, अगर चल रहा है तो u 0 होगा। ओके, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपका u 0 होता है, अगर चलते चलते रुक गया तो v 0 होता है। तो यहाँ पे चलते हुए रुक रहा है तो यहाँ पे v 0 होगा आपका। टाइम आपको 10 सेकेंड बोला था उसने, रिटार्डेशन बोला था आपका 2.5, ये मेंशन किया। माइनस साइन क्यों लिया है? क्योंकि रिटार्डेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन क्यों लिया है? बिकॉज रिटार्डेशन है यहाँ पे। क्या है? रिटार्डेशन। ओके, ये रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव साइन लिया है। एक्सेलरेशन होता तो पॉजिटिव साइन लेते। सिंपल इक्वेशन मैंने यूज़ किया है, v इक्वल्स टू u माइनस ए टी। अब पुट कीजिए, u की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, v की 0 हो गई, एक्सेलरेशन माइनस 2.5 था, 10 टाइम था हमारा, पुट कर दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2.5 पॉइंट हटाया, डेसिमल आ गया नीचे 0, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये बचा 25, v इक्वल्स टू u माइनस 25, 25 को इधर शिफ्ट किया, u इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, देख लीजिए। कुछ डाउट है तो फिर पूछ लेंगे। सो ओके, this is all about question number 4. Please pause the video to make a note of it. Either you can take the screenshot, whichever the way suits you, you can use that one. जो भी आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को पॉज करना है, वो आप कर सकते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या अपलोड कर सकते हैं आपके लिए, कुछ नया कंटेंट और आपको बढ़िया सा नॉलेज जिससे मिल जाए, वो सारा कंटेंट अप्लाई करेंगे। बहुत सारी अभी एस सी वर्मा, बहुत सारी कॉन्सेप्ट लेने हैं हमें एस सी वर्मा से, उसको यूज़ करेंगे। ओके, so please take the screenshot. Yes, so students, this is all about your today's video. If you like this video, then please hit the like button, and if you're watching the video for very first time on our channel, then please subscribe to our channel and also press the bell icon and do all, so that whenever we are uploading a new video, you will get the notification for that. And I would like to request you, please share this video as much as possible. You are having many social media platforms, WhatsApp you are having, Facebook you are having, Instagram you are having, so please share this video on each and every platform that you are associated with, and so that most of the students can take the benefit of this. We are trying to provide best content for you. So after doing many researches, many books we are using, so please please help me to deliver this content to each and every student who are not able to afford this high cost education
or this modern education. So and once again heartily thanks for watching this complete video. Thank you so much all of you.